हेलो किड्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम सभी को नई नई चीज़ों के बारे में जानना सीखना हमेशा पसंद आता है। टेक्नोलॉजी ने हम सबकी लाइफ को कितना इजी कर दिया है। अब हम ऑनलाइन दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी समय कहीं से भी किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज ले सकते हैं, सीख सकते हैं। तो बच्चों, क्या आप मुझे जानते हैं? मैं हूँ आपकी टीचर पूजा त्रिपाठी और मैं पढ़ाऊंगी आपको मैथ्स। तो चलिए शुरू करते हैं। डिवीजन। डिवीजन मीन्स इक्वल शेयरिंग। किसी भी चीज को इक्वली शेयर करना ग्रुप, दैट इज कॉल्ड डिवीजन। सो वी हैव लर्न डिवीजन बाय वन डिजिट नंबर इन प्रीवियस क्लास। वन डिजिट नंबर से डिवाइड करना हमने पहले क्लासेस में सीख लिया था। हियर वी विल लर्न डिवीजन बाय 1 and 2 डिजिट नंबर। इस चैप्टर में हम 1 और 2 डिजिट नंबर से कैसे डिवाइड करते हैं, दैट विल लर्न इन दिस चैप्टर। सो एज वी नो, डिवीजन कैन बी डन इन 2 डिफरेंट मेथड, मेनली रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। हमें पता है डिवीजन क्या होता है। डिवीजन इज सेम एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। सो 6 minus 2 दैट इज 4। अगेन हम 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 4 minus 2 2, 2 minus 2 0. So rather than doing this, we can simply 6 divided by 2 that is also equals to 3. बार बार हम सब्ट्रैक्शन करें, इसकी जगह हम डिवीजन भी कर सकते हैं। सो डिवीजन इज सेम एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। Division is also a process of equal distribution. If we divide 14 in 7 group, each group will have 2. So long division method, 257 divided by 3. So 25 को 3 से करेंगे, 3 8 24, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, नेक्स्ट नंबर नोट डाउन करेंगे 17, 3 5 15 and 2 is remainder here. So 85 is our quotient, 257 is our dividend. Now how can we check whether our division is correct or not? There is a method. Quotient multiplied by divisor means 85 multiplied by 3, that is equals to 245. If we add remainder to it, we'll get dividend, that is 257. That means our division is correct. Next, division of 4 digit by a 1 digit number. So 4 digit number को हमें 1 digit number से divide करना. It is same as we are doing earlier. So here we have to divide 8496 by 3. So first method. So first number is 8, which is less than our divisor, that is 3. 3 2s are 6. So we'll find out a number in 3's table which is either equal to 8 या तो वो 8 के equal हो या उससे just छोटा हो. So 3 2s are 6, because 3 3s are 9 हो जाएगा, that is more than 8. So 3 2s are 6, subtract किया, we will get 2. Next number note down करेंगे, 24 हो गया, 3 8s are 24, subtract करेंगे, get 0. Now we'll note down next number. So 3 3 1s are 3. Clear? So our first number is 8. So we'll find out a number in 3's table which is either equal to 8 or just less than 8. So 3 2s are 6 हो जाएगा, subtract करेंगे get 2. Next number note down करेंगे 24, 3 8s are 24, subtract करेंगे 0. Next number is 9, 3 3s are 9 हो जाएगा, subtract करेंगे 0. Next number 6, 3 2s are 6. So 3832, that is our quotient, and remainder is 0 in this case. Another method is here. So here what we are doing, like 3 into 2000, because 8496 है. So what we have done, 3 को हमने 2000 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 6000, सब्ट्रैक्ट किया, we will get 2496. Now 3 8s are 24 होता है, सब्ट्रैक्ट किया तो विल गेट 96. नाउ 3 30s are 90, सब्ट्रैक्ट किया विल गेट 6. नाउ 3 2s are 6. सो वी कैन यूज एनी ऑफ दिस मेथड. मोस्टली हम लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करते हैं, दैट इज मोर कन्वीनियंट. नेक्स्ट विल टेक एन एग्जाम्पल. In a garden, 4892 rose plants have been equally planted in 7 rows. How many rose plants are there in each row? So total number of rose plant कितने? 4897. उनको equally plant कर रहा है 7 rows में. So we'll divide it by 7. Now 7 6 are 42. Subtract करेंगे, we'll get 6.
Now 6 is less than 7. So हम next number note down करेंगे. It becomes 69. 7 9s are 63. Subtract करेंगे. So we'll get 6. Next number note down करेंगे 3. So it becomes 63. 7 9s are 63. So 699 trees were planted in each row. Clear? So we can use any of this method. We can also check our answer. What we'll do? We'll multiply 699 by 7 and remainder is 0. So that is equals to 4893. That means our answer is correct. Next is exercise 4.1. Divide the following and check your answer. So 1120 divided by 5. So 5 2s are 10. Subtract करेंगे will get 1. Next number 2 हो गया. 5 2s are 10. Subtract करेंगे 2. Next number 20. 5 4s are 20. 0. So 220. Now we have to check our answer. So what we'll do? Multiply by quotient, multiply by divisor plus remainder. So that equals to 1120. That means our answer is correct. So इसी तरीके से आप बाकी सारे क्वेश्चन करेंगे and you will check your answer. Next is mental maths. Fill in the boxes. So first number here 6. 4 1s are 4. Subtract किया will get 2. Next 8 है यहाँ पे. That means we will write here 8. Now 4 7s are 28. Clear? Next number note down करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा 7. 4 1s are 4. 3. So 171, that is our quotient. 3 is remainder here. Clear? Next, division by tens. Divide 180 by 30. 180 को 30 से divide करना है. So 180 divided by 30. So you know 3 6 18 होता है. तो 180 हो गया 30 multiply by 6, that is 180. Subtract किया 0. Will get 0. We know that 3 6 18, so 13 to 6 180. So simply like this we can do also, like 180 divided by 30. So there is 1 0 in dividend and 1 0 in divisor. So हम इसे cancel भी कर सकते हैं इस तरीके से. Then also we can divide. Clear? Next example लेते हैं. There are 5460 books in 60 carton. How many books there in each carton? Whenever जब हमें ज़्यादा का दिया होता है, we have to find it for 1, we will divide. Clear? So what we'll do? 5460 divided by 60. 60 से divide करेंगे. 60 9s are 540. Subtract करेंगे we'll get 6. Next number note down करेंगे 60. 60 1s are 60. So total 91 books will be there in each carton. Clear? Next, exercise 4.2. Divide the following. 45 divided by 5. So we know 5 9s are 45. 5 9s are 45 हो जाएगा. Again 50 divided by 450. So that is also 9. Subtract करेंगे we'll get 0. Clear? Next, divide the following. 80 divided by 20. As I've told you earlier, if there is 1 0 in each dividend or divisor में दोनों में 1 0 है तो cancel हो जाएगा. Simply 8 divided by 2, that is equals to 4. Clear? Next, fill in the blanks. 218 divided by 90. 218 को हमें 90 से डिवाइड करना है. Now 9 की टेबल हमें आती है. 9 2s are 18, 9 3s are 27. So अगर हम 3 टाइम्स करेंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा. So 9 2s are 18, 180. सब्ट्रैक्ट करेंगे 8, ये हो जाएगा 11, 38. So in this case, what we'll get? 2 is our quotient and remainder is 38. Clear? Next, to divide the number by 10, remove the digit at ones place. The digit we remove from the ones place is the remainder.
सो जो वंस की प्लेस की डिजिट होगी, अगर हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं, सो द डिजिट एट 10 प्लेस दैट इज अ रिमाइंडर, और जो बाकी बचेगा वो क्वोशिएंट हो जाएगा. क्लियर? लाइक हियर 90 डिवाइड बाय 10, सो देयर इज 1 0, सो डिजिट एट वंस प्लेस 0 है, तो हमारा रिमाइंडर 0 हो जाएगा और बाकी बच जाएगा 9. दैट इज आवर क्वोशिएंट. 325, so 5 is remainder and 32 is quotient. 954 divided by 10, so 4 is our remainder and 95 is quotient. Clear? Next, estimating quotient. It is useful to first estimate the quotient when you divide by the 2-digit number. For example, 183 divided by 28. 183 को हमें 28 से divide करना है. Clear? So what we are going to do? ईजी वे में हम राउंड ऑफ कर देंगे. 183 राउंड ऑफ होकर हो जाएगा 200 एंड 28 राउंड ऑफ 30. सो व्हाट विल डू? 183 राउंड ऑफ होकर हो जाएगा 200 एंड 28 हो जाएगा 30. नाउ विल डिवाइड 200 बाय 30. सो 3 6 180. सब्ट्रैक्ट करेंगे, विल गेट 20. क्लियर? सो हियर व्हाट वी आर डूइंग, 1 0 इज देयर, 1 0 इज देयर, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा. सो 20 डिवाइड बाय 3 दैट इज 3 6 18. सब्ट्रैक्ट करेंगे 2. सो 183 डिवाइड बाय 28 इज एन एस्टिमेटेड क्वोशिएंट. क्या हो जाएगा? 6. एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं. 92 डिवाइड बाय 42. क्लियर? सो 92 राउंड ऑफ होकर जाएगा 90 एंड 42 राउंड ऑफ होकर हो जाएगा 40. नाउ 90 डिवाइड बाय 40 दैट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स हो जाएगा 80 आ जाएगा. सब्ट्रैक्ट करेंगे 10. दैट इज आवर रिमाइंडर. अगर 0 से 0 कैंसिल कर दें, 9 डिवाइड बाय 4 दैट इज ऑल्सो क्वोशिएंट विल बी 2 एंड रिमाइंडर विल बी 1. क्लियर? इग्नोर द रिमाइंडर बाय एस्टिमेटिंग द क्वोशिएंट. 92 divided by 42 is an estimated quotient, that is 2. Next, exercise 4.3. Estimate the quotient of the following. 156 divided by 17. So 156 round off होके क्या हो जाएगा? 160 and 17 round off होके हो जाएगा 20. So 2 8s are 0. So जो एस्टिमेटेड हमारा क्वोशिएंट आएगा दैट इज 8. क्लियर? जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है. तो इसी तरीके से आपको बाकी सारे क्वेश्चंस में जो हमारा एस्टिमेटेड क्वोशिएंट है दैट यू हैव टू फाइंड आउट. क्लियर? नेक्स्ट इज डिवीजन बाय 2 डिजिट नंबर. अब हम 2 डिजिट नंबर से डिवाइड करेंगे. एग्जाम्पल, सपोज वी हैव टू डिवाइड 81 बाय 9. So you must first estimate the quotient when we divide by the 2 digit number. So 81 round off होके हो जाएगा 80 and 9 round off होके हो जाएगा 10. So 10 8 से 80 subtract करेंगे will get 0. So हमारा क्वेश्चन क्या आ जाएगा इस केस में? 8. Estimated quotient is 8. Step 2. Try with the estimated quotient. 9 into 8 that is 72 which is less than 81. Try the one number bigger because the product is less than the dividend. जो हमारा डिविडेंड है वो क्या था? 80. बट 9 और 8 का प्रोडक्ट 72 जो कि उससे कम है. सो 9 9 is 81. क्लियर? सो द प्रोडक्ट इज इक्वल टू द डिविडेंड. टेक द नंबर एज द एक्चुअल क्वोशिएंट. स्टेप 3. नाउ विल चेक. कैसे चेक करेंगे हम? चेक करने के लिए 12 डिवाइड बाय 7 दैट इज 84. द क्वोशिएंट इज 7. क्लियर? सो दिस वे वी कैन चेक. Example 2 लेते हैं. If 284 eraser have to be packed into 18 boxes, how many boxes are needed? How many erasers are left over? 284 को 18 से डिवाइड करेंगे. सबसे पहले हमने क्या किया है? एस्टिमेटेड क्वोशिएंट फाइंड आउट करना है. सो 280 डिवाइड बाय 20 बिकॉज 284 राउंड ऑफ होकर जाएगा 280 एंड 18 हो जाएगा 20. डिवाइड करेंगे विल गेट 14. सो 14 क्या हमारा एस्टिमेटेड क्वोशिएंट है. नाउ स्टेप 2. Try with estimated quotient. 18 into 14 252 which is less than 280. अब हम एक नंबर आगे ट्राई करेंगे ग्रेटर नंबर के साथ. 18 into 15 करेंगे 270 which is again less than 280. So try one number greater. 18 into 16 that is 288 which is more than 280. तो हम क्या लेंगे? 15 as the actual quotient. If we do not get the product that is equal to the dividend, look for the product that is closest to the dividend but smaller than that. ठीक है? अगर हमें उसके बराबर नहीं मिलता तो हम क्या करेंगे? उसके क्लोजेस्ट जस्ट छोटा जो नंबर है वो फाइंड आउट करेंगे. स्टेप 3. 284 डिवाइड बाय 18. सो 1 टाइम हो जाएगा. सब्ट्रैक्ट करेंगे
10 आ जाएगा. नेक्स्ट नंबर नोट डाउन करेंगे 4. 18 5 are 90, सब्ट्रैक्ट करेंगे 14. So in this case quotient is 15 and remainder is 40. Clear? Now we can check 18 into 15 plus 14. Dividend किसके इक्वल होगा? डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. So that is equals to 284. That means our division is correct. Thus 15 boxes are required to pack 284 eraser. 14 erasers are left over. जो रिमाइंडर है वो हमारा बच जाएगा. क्लियर? नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.4. Find the quotient and remainder in each case. 53 divided by 25. So 25 twos are 53. So quotient is 2 and 3 is our remainder. Clear? Next, divide using long division method. Long division method का use करके divide करना है हमें. 518 divided by 47. So first 47 ones are 47, 11, 4. Next number note down करेंगे 8. So 47 ones are 47. Subtract करेंगे will get 1. तो इस केस में हमारा 11 जो है that is quotient and 1 is our remainder. Clear? तो इसी तरीके से आप बाकी सारे क्वेश्चंस करेंगे. नेक्स्ट, डिवाइड एंड चेक योर आंसर. यहाँ पे हमें डिवाइड भी करना है और अपना आंसर चेक भी करना है. सो 511 डिवाइड बाय 46. क्लियर? 46 वंस आर 46. सब्ट्रैक्ट करेंगे 5. नेक्स्ट नंबर नोट डाउन करेंगे 151, 11, 46. सब्ट्रैक्ट करेंगे हम अगेन, ये 11 हो जाएगा, ये 4, सो 5. नाउ विल चेक. चेक हम कैसे करेंगे? 46 मल्टीप्लाई बाय 11 प्लस 5, 6, 506 प्लस 5 दैट इज इक्वल्स टू 511. वो क्या था हमारा? दैट इज आर डिविडेंड. दैट मीन्स आर डिविजन इज करेक्ट. तो इसी तरीके से आप सारे नंबर्स को डिवाइड करेंगे एंड यू विल चेक वेदर योर डिविजन इज करेक्ट और नॉट. नेक्स्ट, डिविजन ऑफ मनी. एग्जाम्पल लेते हैं. डिवाइड रुपीज 176.50 बाय 5. सो उसी तरीके से सिंपली जैसे हम डिवाइड करते थे उसी तरीके से करेंगे, ओनली हमें डेसिमल का ध्यान रखना है. सो 176.50 डिवाइड बाय 5. 5 3 is 15. सब्ट्रैक्ट करेंगे 2. नेक्स्ट नंबर नोट डाउन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 26. नाउ 5 5 are 25. क्लियर? सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ गया? 1. नाउ अब हमने यहाँ तक के नंबर यूज़ कर लिए, इसके बाद डेसिमल है, सो विल पुट डेसिमल इन द क्वेश्चन. क्वेश्चन में हम डेसिमल लगा देंगे. नेक्स्ट नंबर नोट डाउन कर लेंगे. 5 3 are 15. जैसे फिर आगे हम जैसे हम नॉर्मली डिवाइड करते हैं उसी तरीके से करेंगे. क्लियर? ओनली हमें डेसिमल प्लेस करने का ध्यान रखना है. 5 3 are 15. सो 35.5 दैट इज आवर क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर इज 0. डिवाइड एज यूजुअल एंड प्लेस द पॉइंट in the quotient above the point in the dividend. That thing you have to keep in mind. Example 2 लेते हैं. 8 color pencil cost rupees 240.32. Find the cost 1 color pencil. हमें 8 की given है, we have to find for 1. That means we'll divide. So 240.32 divide by 8. Now 8 3 are 24. Subtract किया 0. Clear? So next number क्या आएगा? 0 आएगा. But 0 नेक्स्ट नंबर नोट डाउन करने के बाद भी इट इज़ लेस देन आर डिवाइजर. तो हम क्या करेंगे? हम क्वोशिएंट में एक 0 लगा देंगे. नाउ नेक्स्ट इज डेसिमल, सो विल पुट डेसिमल इन द क्वोशिएंट. क्लियर? उसके बाद वाला नंबर नोट डाउन करेंगे दैट इज 3 एंड 2. 32. 8 4 are 32 बिकॉज 3 हमने नोट डाउन किया विच इज़ लेस देन 8, तो भी हमारा डिविजन नहीं हो पाएगा. सो विल पुट 1 0 अगेन इन क्वोशिएंट एंड देन 2 को नोट डाउन करेंगे तो 32 हो जाएगा. 8 4 are 32. सब्ट्रैक्ट करेंगे 0. सो कॉस्ट ऑफ द 1 कलर पेंसिल इज ₹30.04. क्लियर? नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.5. डिवाइड द फॉलोइंग 52.50 बाय 6. सो हम डिवाइड करेंगे 52.50 को
6 है, 6 8 ज़ा 48, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 4, 8 4 आ जाएगा। नाउ इसके बाद क्या है यहाँ पे, हमारा यहाँ पे डेसिमल है तो फिर प्लेस डेसिमल एयर। नेक्स्ट नंबर नोट डाउन करेंगे, 6 7 ज़ा 42, सब्ट्रैक्ट करेंगे सो विल गेट 3। नेक्स्ट नंबर नोट डाउन करेंगे, 6 6 ज़ा 36, सो आंसर क्या आ जाएगा, ₹8.76। क्लियर? नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग। If 3 pens cost ₹59.70, how much does 1 pen cost? 3 की हमें गिवन है, 1 की फाइंड आउट करनी है, दैट मीन्स डिवाइड। हम क्या करेंगे, 59.70 को 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 ज़ा 3, सब्ट्रैक्ट किया 2, 3 9 ज़ा 27, 2 आ गया। नाउ देयर इज अ डेसिमल, सो पुट डेसिमल हियर एंड 3 9 ज़ा 27, सो 19.9 रुपीज़, दैट विल बी द कॉस्ट ऑफ 1 पेन। क्लियर? तो इसी तरीके से आपको बाकी सारे क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट, पैटर्न इन डिवीजन। देर आर मैनी पैटर्न इन डिवीजन। डिवीजन में भी कई तरीके के पैटर्न होते हैं। ऑब्जर्व द पैटर्न, 9 डिवाइड बाय 3 दैट इज 3, 90 डिवाइड बाय 3, तो हमारा क्वेश्चन जो है उसमें एक जीरो बढ़ गया। जैसे जैसे हमारा डिविडेंड में जीरो बढ़ रहा है वैसे ही हमारा क्वेश्चन में बढ़ रहा है। 900 डिवाइड बाय 3 दैट इज 300, 9000 divided by 3 that is 3000. So what do you observe? You observe that as the dividend increase, quotient is also increase. जैसे जैसे dividend बढ़ेगा वैसे वैसे quotient भी बढ़ेगा। Next is exercise 4.6. Complete the following. 8000 divided by 2. So 8000 को divide करेंगे, simply 8 को अगर हम 2 से divide करेंगे तो क्या आएगा 4 और पीछे 3 0 लगा देंगे, that is equals to 4000. Clear? तो इस तरीके से बाकी सारे क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट, लुक एट द पैटर्न एंड कंप्लीट द ब्लैंक्स। तो सबसे पहले हमें पैटर्न देखना है। लाइक हियर 64 है, 8 से डिवाइड किया, 8 इट इज 64। क्लियर? 72 डिवाइडेड बाय 12 दैट इज 6। नाउ 36 डिवाइडेड बाय 9 दैट इज 4। 54 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज 9। क्लियर? नेक्स्ट इज वर्ड प्रॉब्लम्स। एग्जाम्पल लेते हैं। पूजा हैज़ ₹515 टू बाय द कार्ड्स फॉर द न्यू ईयर। पूजा के पास 515 रुपीज़ है न्यू ईयर का कार्ड खरीदने के लिए। ईच कार्ड कॉस्ट ₹25। हाउ मैनी कार्ड कैन बी बॉट एंड हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट विथ हर। सो एक कार्ड की जो कॉस्ट है दैट इज़ 25 रुपीज़, तो वो कितने कार्ड खरीद सकती है और उसके पास कितना जो मनी है वो बच जाएगा। टू फाइंड आउट द आंसर व्हाट विल डू, जो टोटल है मनी 515 उसको हम 25 से डिवाइड करेंगे। क्लियर? सो 515 डिवाइड बाय 25, सबसे पहले हम क्या करेंगे 51 को डिवाइड करेंगे। 25 2 ज़ा 50, यहाँ पे आ जाएगा 50, सो सब्ट्रैक्ट करेंगे विल गेट 1। नेक्स्ट नंबर नोट डाउन करेंगे 15। 15 इज लेस देन 25, तो ये हमारा क्या हो जाएगा रिमाइंडर। क्लियर? सो नंबर ऑफ कार्ड दैट शी कैन बाय इन दैट रुपीज़ दैट इज 20 रुपीज़, और जो मनी उसके पास बच जाएगा दैट इज 15 रुपीज़। क्लियर? वन मोर एग्जाम्पल विल टेक। अ टॉय कार कॉस्ट ₹17 इफ यू हैव ₹240। हाउ मैनी सच कार्स कैन यू बाय, हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट ओवर। तो उसी तरीके से 240 को हम 17 से डिवाइड करेंगे। सो 17 1 ज़ा 17, सब्ट्रैक्ट करेंगे विल गेट 7। नेक्स्ट नंबर नोट डाउन करेंगे 70, 17 4 ज़ा 68, सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, दैट मीन्स 14 जो है कार, वी कैन बाय 14 टॉय कार्स एंड ₹2 विल बी लेफ्ट ओवर। क्लियर? सो नेक्स्ट इज मेंटल मैथ्स। Solve the following question. The cost of the chalk box is ₹36. Find the cost of 5 such box. एक चॉक बॉक्स की कॉस्ट है वो कितनी है 36 रुपीज। 5 की फाइंड आउट करनी है, मीन्स 36 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 5 3 is 15 16 17 18, 180 rupees. Clear? Next is exercise 4.7. Solve the following word problems. 8,424 notebooks are equally distributed among 36 students. How many notebooks does each student get? So 8,424 notebooks है
टोटल उसको 36 स्टूडेंट में इक्वली डिवाइड करना है. सो व्हाट विल डू, हम क्या करेंगे 8424 को डिवाइड करेंगे 8424 डिवाइडेड बाय 36. 36 2s are 72. सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 1. नेक्स्ट नंबर नोट डाउन करेंगे दैट इज 2. सो ये हो जाएगा 122. वी नो 3 4 से 12 होता है, तो 3 टाइम्स करेंगे 108. सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 12 4 1 14. नेक्स्ट नंबर नोट डाउन करेंगे 144. नाउ 136 को 4 से करेंगे सो 234 नोटबुक्स ईच चिल्ड्रन को मिलेगी. क्लियर. सो इस तरीके से अगर हमें ज़्यादा का गिवन है वी हैव टू फाइंड फॉर 1, वी विल ऑलवेज डिवाइड. क्लियर. तो इसी तरीके से हम बाकी सारे क्वेश्चंस करेंगे. नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन. Simplifications means solving a question using the all 4 fundamental operation like addition, subtraction, multiplication and division in the particular order. The order is D mass means सबसे पहले हम division करेंगे, फिर multiplication, फिर addition and फिर subtraction. So अगर किसी प्रॉब्लम में हमें ये 4 ऑपरेशंस दे रखे हैं लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो एक ऑर्डर फॉलो होगा. सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, देन विल मल्टीप्लाई, देन विल ऐड एंड एट द एंड विल सब्ट्रैक्ट. सो एग्जाम्पल लेते हैं 36 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 माइनस 8. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे 36 को 6 से डिवाइड करेंगे. 36 डिवाइड बाय 6 दैट गिव्स यू 6. अब हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 2 माइनस 8 दैट इज 24. अब हम करेंगे एडिशन, तो 24 प्लस 2 26 माइनस 8 दैट इज 18. दैट इज द आंसर. क्लियर. सो दैट ऑर्डर वी हैव टू keep in mind while we are doing simplification. Next is exercise 4.8. Simplify the following: 13 minus 3 plus 10 divided by 2. So our question is 13 minus 3 plus 10 divided by 2. So first we'll divide 13 minus 3 plus 10 divided by 2 that is 5. अब हम क्या करेंगे, अब हम 13 minus 3 प्लस 5. सो सबसे पहले हम ऐड करेंगे 3 प्लस 5 8. नाउ हम क्या करेंगे 13 माइनस 8 करेंगे दैट इज 5. सो दैट इज द आंसर. क्लियर. तो इसी तरीके से हम बाकी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. क्लियर. नेक्स्ट इज मेंटल मैथ्स. ईच रो एंड कॉलम इज अ डिविजन प्रॉब्लम. कंप्लीट द ऑपरेशन एंड राइट द आंसर इन द एम्प्टी बॉक्सेस. Like here 12 divided by 3 that is 4, 6 divided by 3 that is 2. अगर इस तरीके से डिवाइड करेंगे 12 divided by 6 that is 2, 3 divided by 3 that is 1 and 4 divided by 2 that is 2. So 68 divided by what gives you 34. So 68 divided by 2 that is 34. Clear. Now dash divided by 2 gives you 2. So 4 divided by 2 gives you 2. Clear. Now यहाँ पे क्या आ गया 17. Now 17 divide by, because हमें यहाँ पे भी डिवीजन का साइन लगाना है. So that is the 1 that is equals to 70. So this is how we'll solve it. Clear. इसी तरीके से हम बाकी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है. आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया है. डिवीजन का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है कि किस तरीके से हमें डिवाइड करना है एंड इन विच सिचुएशन वी विल डिवाइड. क्लियर. सो प्रैक्टिस दिस चैप्टर.